Good morning students. In our last economic class, we studied different phases of circular flow of income. Today I will tell you about stock and flow variables and real and physical flow. Stock and flow variable. First is stock variable. Stock variable, as its name shows, that it shows the stock of some certain thing at a particular point of time. So stock variables are those variables which shows the occurrence of them at a particular point of time, which is measured at a particular point of time, that is known as stock variable. Like if we calculate stock in a business, the stock will be calculated on some date. If we talk about stock as on 31st March 2019, it means the stock which we are talking about was that much on particular date. पर्टिकुलर डेट पे हमारा स्टॉक कितना था ये उसको दिखा रहा है. तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो डेट है वो किसको शो कर रही है? पॉइंट ऑफ टाइम को. द डेट इज शोइंग पॉइंट ऑफ टाइम. ओके. The second term is flow variable. Flow means which is continuously going on, which is in flow, which is flowing, that is known as flowing variable. So flow variable is measured in the period of time. Stock is measured point of time and flow is measured at a period of time. Stock is measured in a particular period of time, जिसको हम particular period of time में calculate करते हैं वो होता है आपका flow variable. Very simple example I am giving you, like when water supply is there, water supply is there. तो when it is supplying to your tank, जब वो टैंक में आती रहती है तो that is known as the flow variable. Continuously it is increasing. When it's stopped, after that the balance, the stock we have of water is known as the stock variable. So different terms can be used as stock and flow variable. Like national wealth, because national wealth is calculated on a particular date, so it will come in stock variable. Again national capital is again calculated on a particular date. इसका मतलब particular date पे हमारा national capital इतना था, हमारा wealth इतना था, हमारा stock इतना था. जो particular point of time को दिखा रहा है वो हमारा stock variable हो जाएगा. And the flow variable which is showing a period of time, जैसे कोई भी चीज़ loss profit एक दिन में नहीं होता, हमको इस सेकंड लॉस हुआ ऐसा हम नहीं बोल सकते. लॉस किस वजह से हो रहा है? इतने टाइम की वजह से लॉस हो रहा है. कंटिन्यूसली प्रॉफिट कंटिन्यूसली हो रहा है, सेल कंटिन्यूसली हो रहा है. एक सेकंड का पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप नहीं बता सकते हो कि इस वक्त हमारा सेल कितना है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लो वेरिएबल, जो चलता रहता है. तो उसमें आप क्या आ जाएगा, जो फ्लो वेरिएबल है उसके अंदर आप क्या आ सकता है? सेल है, प्रॉफिट है, इनकम है और लॉस है. इस तरह की सारी चीज़ें आपके फ्लो वेरिएबल्स का पार्ट हो जाती हैं. अब जो ये वेरिएबल्स होते हैं इनका हम डिफरेंस देख लेते हैं.
In basis, we will write meaning in a stock. Stock is that which is measured at a particular point of time. So, stock, it is measured at a particular point of time, and flow is measured over a period of time. Second point, time dimension. Stock doesn't have time dimension. It doesn't have time dimension. Because it doesn't affect with the passage of the time. Whereas flow has time dimension. Third, nature of concept. We know stock is fixed. It cannot change in the particular point of time. So, it has static nature. It is a static concept. Or flow, it is a dynamic concept. Fourth, some examples. Money supply, national wealth, wheat, quantity of wheat stored, quantity of wheat stored, example of flow variables are expenditures, in money, national income, quantity of wheat produced, You can take it down, everyone. These are the differences and these are important from your exam perspective also. So, you can just take it down. So, I think what are the differences I have already explained you while writing. It is clear to you, it must be clear to you that stock variables are, it is a measured at a particular, we have already known that स्टॉक वेरिएबल को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है, वेयर एज फ्लो वेरिएबल्स आर कैलकुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. द पीरियड कैन बी ऑफ 1 वीक, 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर एंड मोर ऑन. Stock variable, it doesn't have time dimension because we are talking about a particular point of time and the time cannot be changed in that particular point of time. So,
Flow variable has time dimension, it can change. Like if we talk about the cell of 1 week, so today, tomorrow, the cell can be vary in today and tomorrow. Then stock, it is a static concept, ये fixed nature का होता है. Static means which doesn't change, तो ये change नहीं होता है. Whereas flow variable as changing, ये dynamic concept का होता है, ये change होता रहता है. And examples, मनी सप्लाई आपको डाउट आ सकता है कि किस तरह से होती है. तो मनी विच इज रोमिंग हियर एंड देयर अमंग द पीपल ऑफ द नेशन इज नॉट द मनी सप्लाई. मनी सप्लाई इज दैट करेंसी विच हैज़ बिन इशूड फ्रॉम द आरबीआई. आरबीआई ने अगर एक बार इशू कर दिया है, जो टेंडर निकल चुका है मनी सप्लाई का, दैट इज नॉन एज द मनी सप्लाई. अभी तुम्हारे पास में कितना है, मेरे पास में कितना है, ये मैटर नहीं करता है. कंट्री के पर्सपेक्टिव से पूरे कंट्री के अंदर कितना मनी है, फिजिकल फॉर्म में कितना पैसा है, वो मनी सप्लाई का पार्ट होता है. नेशनल वेल्थ, जो आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर हम नेशनल वेल्थ कैलकुलेट करते हैं, कोई भी सर्वे किया जाता है, तो पर्टिकुलर डेट को कितनी वेल्थ है नेशन की, वो इसके अंदर आ जाएगा. अगेन वीट स्टोर जो वीट होता है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है. जबकि अगर वीट का आप प्रोडक्शन करते रहते हैं तो वो चेंज होता रहता है, हर रोज़ उसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड. Okay, now we are moving towards the another topic, that is types of circular flow. Circular flow क्या होता है ये हमने पहले पढ़ा था. अभी कितने टाइप का होता है? The circular flow is of 2 types, real flow and money flow. We studied that between household and business firms, few things that is known as factor of production and final goods, that is known as goods and services, flow from household to business firm and business firm to households. So that is known as the real flow. Again we saw that money flow, we saw that when households are giving their factor services to the business firms are returning back in the form of income of the households, that is known as income of factors of production. Again the household will purchase their necessities from the business firm and they will pay back to the business firms, that is known as the money flow. फिर से बता रही हूँ मैं आपको, रियल फ्लो, मनी फ्लो. जब हाउस होल्ड से बिजनेस फर्म्स के पास में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं फैक्टर सर्विसेज जाती हैं उसको, और जब बिजनेस फर्म से वापस गुड्स और सर्विस के फॉर्म में कंज्यूमशन के लिए चीज़ें लौट करके हाउस होल्ड्स के पास में आती है, उसको बोलते हैं हम रियल फ्लो. जबकि अगर जब बिजनेस फर्म्स हाउस होल्ड्स को उनकी फैक्टर सर्विस के बदले में कुछ भी मनी देता है, वो उनकी इनकम हो जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं इनकम ऑफ फैक्टर सर्विसेज. एंड अपनी नेसेसिटीज़ को, अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जब हाउस होल्ड्स बिजनेस फर्म से कुछ भी गुड्स और सर्विस परचेज करते हैं, उसके लिए जो पेमेंट करते हैं, तो ये दोनों मिला करके आपका क्या हो जाता है, मनी फ्लो. आई जस्ट शो यू. हाउस होल्ड से बिजनेस फर्म के पास में जा रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन.
और बिजनेस फर्म से लौट करके गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड्स के पास में जा रही हैं। ओके, सो दिस इज नॉन एज द रियल फ्लो। ऑल्सो वी कैन कॉल इट फिजिकल फ्लो, क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म में होती है जो चीज़ें जाती आती है, तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, फिजिकल फ्लो। सेकेंड, बिजनेस फर्म हाउस होल्ड को पेमेंट करती है, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, फॉर फैक्टर्स, और हाउस होल्ड्स गुड्स और सर्विस के लिए कंज्यूम्शन एक्सपेंडिचर करते हैं। कंज्यूम्शन एक्सपेंडिचर्स करते हैं और वापस वो उनको मनी रिटर्न कर देते हैं एक्सपेंडिचर्स के फॉर्म में। तो इन शॉर्ट रियल फ्लो वो होता है जिसके अंदर फिजिकली गुड्स और सर्विस की डिलीवरी की जाती है, और मनी फ्लो वो होता है जिसके अंदर मनी को एक्सचेंज, मनी को ट्रांसफ़र किया जाता है, मनी का फ्लो होता है, वो आपके मनी फ्लो कहलाता है। अभी क्लियर? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब किसी भी इकोनॉमिक्स की स्टडी हम वास्ट लेवल पे करते हैं, कंट्री लेवल पे, लार्ज लेवल पे करते हैं, तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड टॉपिक था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है जब हमारी इनकम एक से दूसरे सेक्टर के पास में और दूसरे से एक पहले सेक्टर के पास में वापस आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म। तो जब इनके बीच में इनकम घूमती रहती है, इधर से उधर ट्रांसफ़र होती रहती है, उसको बोलते हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसके बाद में हमने देखे थे सर्कुलर फ्लो के 3 फेज़ पढ़े थे हमने। कौन कौन से थे? फर्स्ट था जनरेशन फेज़। जनरेशन फेज़ में जो बिजनेस फर्म्स होती है फैक्टर सर्विसेज यूज़ करके कुछ प्रोडक्शन करती है। जब वो कुछ प्रोडक्शन करती है उसके बाद में वहाँ से वो जो इनकम होती है उनका पेमेंट करती है। द बिजनेस फर्म्स pays to the households in the form of the income for using their factor services, and again जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिजनेस फर्म्स के लिए, जबकि इनकम फेज हो सकता है वो हाउस होल्ड्स के लिए। एंड इन द थर्ड फेज अगेन द हाउस होल्ड्स पे बैक द मनी टू द बिजनेस फर्म टू टेक द टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट दे कैन कंज्यूम इट। तो जो थर्ड फेज होता है उसके अंदर जो हाउस होल्ड होते हैं वो कंज्यूमशन करते हैं और उसके लिए वो एक्सपेंडिचर करते हैं। एक्सपेंडिचर के लिए वो जो बिजनेस फर्म्स होती हैं उनको पैसा वापस देते हैं और उनसे गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं। इसको हम बोलते हैं थर्ड फेज को डिस्पोजिशन फेज और एक्सपेंडिचर फेज। आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट 2 वेरिएबल्स, स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल वो होता है जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है, विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो चेंज नहीं होता है। लाइक आपका स्टॉक है, कैपिटल है, नेशनल वेल्थ है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो वो आपका स्टॉक वेरिएबल माना जाता है। फ्लो वेरिएबल वो होता है विच इज़ फ्लोइंग इन द पर्टिकुलर पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम, जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर फ्लो करता रहता है, चेंज होता रहता है बाय पासिंग ऑफ ईच मोमेंट, उसमें चेंज आता रहता है, उसको हम बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। जैसे कि आपका सेविंग्स है, इनकम है, लॉस है, प्रॉफिट है। जैसे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो फ्लो का पार्ट हो जाएगा, और जब आप उसका प्रोडक्शन करके उसको रख देते हैं, प्रोडक्शन रुक जाता है, उसके बाद में वो आपका स्टॉक हो जाएगा। क्लियर? एंड देन वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो। तो फ्लो आपके 2 टाइप्स का होता है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो होता है जब चीज़ें फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, फिजिकल फॉर्म में एक्सचेंज होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे आती है। जैसे हमने देखा था यहाँ पे 2 सेक्टर्स थे, 2 सेक्टर्स में households and business firms were there, and households were giving their factor services to the business firms, and business firms are producing the goods and services and selling it to the households. That is known as the real flow. यहाँ पे real flow होता है जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, physical flow. And the second one was household
when households are giving their services to the business firms have to pay back to the households for using their factor services. So that is known as the income for the households, and that is known as the payment for factors for the business firms. Again, the households will have to consume the things to satiate their needs, and for that they will purchase the goods and services produced by the business firm, and they will give the money back to the business firm. They will consume the thing and expand their money to the business firm for using their goods and services. So this is how the circle goes on. इस तरह से वो चलता रहता है. So that's it for today. In the further class, we will read about different type of sectors like closed economy and open economy. कितने तरह के sectors हो सकते हैं वो हम next class में देखेंगे. Thank you all.